Today is our ninth lecture of media laws. As you all know that we have already covered the midterm syllabus and we are done with the midterm exams as well. So now onward, we will continue our lectures through this online learning mode, which is Google Meet. And today we will start our first topic of the final terms exams. Today's lecture is the PEMRA Ordinance. We will discuss in detail the PEMRA Ordinance, which we will discuss this lecture through our slides. I have prepared certain slides, and I will discuss these slides with you one by one. If you I'm students, I'm planning to conduct a live session as well in the coming classes. So if you have any questions, so that you can ask those questions in the live interactive session. So today we will study with this PEMRA ordinance, and this PEMRA ordinance, there are certain table of contents that I have prepared. First is the intro. We will start this lecture with the introduction, then the objectives of the PEMRA, then the functions of the PEMRA authority, then the regulatory framework, and what is the need to issue that PEMRA ordinance, then the category of the licenses, terms and conditions of the license, and the economic contribution of this ordinance. Firstly, I will start with the introduction of this lecture, which states that Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) was established in March 2002. It works on improving standards of the information, education, and entertainment provided to the people of Pakistan through news, current affairs, art, culture, science, and technology, music, films, dramas, morning shows, talk shows, and radio shows, etc. PEMRA जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, which came into existence in March 2002. The purpose was basically to provide our standard information to the people for the purpose of educating the masses. I already told you in my previous lectures that there was a need of such ordinance in order to create a system of checks and balance on the private channels as well. जैसा कि हमने पाकिस्तानी अगर हम मीडिया हिस्ट्री को अगर देखें तो उसमें सबसे पहले जो है एक जनरल अयूब खान के टाइम में जो था, that was a concept of very controlled media. मीडिया जो था एक बहुत ही कंट्रोल्ड मीडिया की तरह एक्ट करता था. कोई भी एक जो इंफॉर्मेशन थी वो एक फिल्टर्ड एंड कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन जो थी वो दी जाती थी, और उस इंफॉर्मेशन को जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाता था एक वेरी ही लिमिटेड वे के थ्रू. फिर उसके बाद जो है जनरल याहिया खान जो है उनका एक टाइम देखा गया, उसमें भी सेम जो था मीडिया में कोई रिलैक्सेशन नहीं आई. सेम जो थे लॉज जो थे उनमें थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ उन लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया, और उन लॉज का पर्पस सिर्फ यही था कि एक obviously when there is a dictatorship, so a dictator will never want to sensitize the masses. He always want to control the masses psychologically, और वो psychologically जो है आप masses को control कर सकते हैं जब आप उनको एक just controlled information जो है वो provide करें, और वो controlled information जो है वो provide की जाती थी मीडिया पर strict जो है वो restrictions लगाकर. मीडिया जो है उसमें एक जो है एक कंट्रोल टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड करता था. फिर उसके बाद जो है एक देखा गया जनरल ज़ियाउल हक का दौर जो था वो विटनेस किया गया, और जनरल ज़ियाउल हक का दौर जो है उसमें एक इस्लामाइजेशन का पीरियड जो था वो फेस किया गया, और इस्लामाइजेशन के पीरियड में ज़्यादा जो था स्ट्रेस वाज गिवन टू द इस्लामाइजेशन. मीडिया पे भी जो भी चीज़ें थी वो एक इस्लामिक पैरामीटर्स के बीच में रहते हुए स्ट्रिक्ट इस्लामिक पैरामीटर्स के अंदर रहते जो चीज़ें जो थी वो पब्लिश की जाती थी. बट इन 2002 फिर एक जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ का जो था पीरियड
वो देखा गया। जनरल परवेज मुशर्रफ के पीरियड में मीडिया लिबरेशन का जो था वो पीरियड देखा गया। यहाँ पर मीडिया को जो थी वो इंडिपेंडेंस दी गई। मीडिया जो थी उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो थी वो प्रोवाइड किया गया। और यहीं से जो था एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि प्राइवेट चैनल्स जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि प्राइवेट चैनल्स को इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक रीज़न ये था कि नेबरिंग स्टेट के जो कुछ चैनल्स जो थे वो डिश के थ्रू जो थे वो उनका जो था वो अमल दखल स्टार्ट हो गया। और उसके थ्रू दैट वाज पोजिंग एक्चुअली अ सीरियस थ्रेट to the culture and Islamic values of the Pakistan, because those channels or programs were just showing their culture and their religion. So that there was apprehension that this can put a serious threat as far as the cultural and Islamic values of the Pakistan are concerned. So intentionally private channels were introduced so that there should be a variety of choice to the people. लोग जो हैं उनको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वैरायटी प्रोवाइड की जाए और उस वैरायटी में उनके पास मैक्सिमम चॉइस हो, जिसमें से उस मैक्सिमम चॉइस में से वो जो है वो एंटरटेन हो सके। लेकिन फिर एक ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब ये कितने सारे प्राइवेट चैनल्स हैं जो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, अब इन प्राइवेट चैनल्स को जो है किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक नई प्रॉब्लम जो थी वो स्टार्ट होगी कि इन प्राइवेट चैनल्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है। सो इन प्राइवेट चैनल्स पर एक चेक एंड बैलेंस जो है वो क्रिएट करने के लिए पेमरा ऑर्डिनेंस जो है वो 2002 मार्च में इंट्रोड्यूस किया गया अलॉन्ग विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द मीडिया। सो ये जो था पेमरा ऑर्डिनेंस, इसने बेसिकली काम शुरू किया एक इंफॉर्मेशन का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करने का। मैसेज को एजुकेट करना है और मैसेज को एंटरटेन करना है। सो एक क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस किया जाए जिससे आप लोगों के लिए एक तरफ तो आप लोगों की चॉइसेस जो है वो इम्प्रूव कर सकें और दूसरी तरफ जो है आप क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। फिर जो है इस पर्पस ये था कि लोगों को डिफरेंट जो है वो फील्ड्स प्रोवाइड की जाए। वो फील्ड न्यूज़ की हो सकती है, करंट अफेयर्स की हो सकती है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, म्यूजिक से रिलेटेड हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो कंटेंट जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, किया जाएगा। ड्रामा जो है वो ऑन एयर किए जाएंगे, मॉर्निंग शोज होंगे, टॉक शोज होंगे। वो टॉक शोज जो है वो सोशल इशूज से रिलेटेड हो सकते हैं, पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड हो सकते हैं, इकोनॉमिक इशूज से रिलेटेड हो सकते हैं, इवन मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, एंड रेडियो शोज। इन सब चीज़ों का जो था वो ट्रेंड स्टार्ट किया गया थ्रू प्राइवेट चैनल्स, प्लस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेमरा ऑर्डिनेंस। ये पेमरा ऑर्डिनेंस जो होगा वो एक चेकिंग अथॉरिटी होगी इन सब प्राइवेट चैनल्स। Then we will move further towards the subtopic, that is what are the objectives of the PEMRA. So there are certain objectives of the PEMRA. First is improving standards of the information, education and entertainment. Secondly, enlarging the choice of the people for news, current affairs and the music. So different जो हैं वो objectives जो हैं वो PEMRA के देखने को मिले। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव जो था, एम जो था पेमरा का, वो ये था कि एक स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इम्प्रूव किया जाए। स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे इम्प्रूव होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ वही जारी ना हो, बल्कि वैरायटी ऑफ ओपिनियंस एंड ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, जिनको हम बोलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियंस जो हैं, इंफॉर्मेशन के साथ एक्सपर्ट ओपिनियंस का भी एक ट्रेंड स्टार्ट हो और लोगों को जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस दिए जाएं ताकि उनकी माइंड मेकिंग हो सके, उनका एक पॉलिटिकल एक्सपोजर हो सके, ठीक है। और एजुकेट किया जाए लोगों को, और लोगों को एजुकेट किया जा सकता है डिफरेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट्स बताया, क्लास में भी काफ़ी दफ़ा डिस्कशन हुई है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब जो प्रिंट मीडिया जो है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इनमें से दोनों में से कौन सा मीडिया जो है उसका ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट जो है वो लोगों पर पड़ता है। सो प्रिंट मीडिया जो है वो जो है, एक तो अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, अर्बन एरियाज़ में तो ठीक है, देयर इज द ट्रेंड के लोग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपडेटेड रहते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ,
but when it comes to the urban area, so there is a less trend of the newspapers there. So people get a political exposure only through the electronic media. लोग जो हैं उनका पॉलिटिकल एक्सपोजर जो है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है उनके पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस आती हैं उनके पास, जिसके थ्रू वो न्यूज़ बुलेटिन्स के थ्रू, प्राइवेट चैनल की न्यूज़ बुलेटिन्स के थ्रू और टॉक शोज के थ्रू वो अपने ओपिनियन जो हैं वो बिल्ड करते हैं और उन्हीं ओपिनियंस की बेसिस पर वो आगे वोडकास्ट करते हैं। सो ये एक देखा गया कि किस मीडिया जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो बेहतर हो सकता है मैसेज में। सो इट वाज कंक्लूडेड विद great consensus that the electronic media or broadcast media has a greater impact on the masses as compared to the print media. So अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके थ्रू जो है आप लोगों को एक क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक बेहतर क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। जैसा कि डिफरेंट जो है वो स्टूडेंट्स इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि चाइल्ड एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करना है, यानी कि चाइल्ड लेबर को अगर हम बात करें डिस्करेज करना है, तो उससे रिलेटेड हम छोटे छोटे से एड्स बना सकते हैं। पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो हैं वो हम कंडक्ट कर सकते हैं। उन पब्लिक सर्विस मैसेजेस के थ्रू हम मैसेज को एजुकेट कर सकते हैं कि हमें चाइल्ड लेबर जो है उसको किस तरीके से डिस्करेज करना है। दीज चिल्ड्रन डू नॉट डिजर्व टू स्टार्ट द लेबर एट दिस अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ। सो इस चीज़ को हम जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो हम उनको पब्लिक सर्विस मैसेजेस के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। और ब्रॉडकास्ट मीडिया इज ओनली द वे जिसके थ्रू हम लोगों तक बड़े मैथ लेवल पर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। फिर और बहुत सारे इशूज हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम एग्जाम्पल लें तो डोमेस्टिक वायलेंस को हम डिस्करेज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? अगर हम अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें चैनल्स के ऊपर कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसको हमें डिस्करेज करना है, उससे रिलेटेड हम लॉज की अवेयरनेस कर सकते हैं। लॉज जो है उसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सब कुछ हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। लेकिन ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हर तरह की इंफॉर्मेशन ना जाए, उस इंफॉर्मेशन पे भी जो है एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और वही चेक्स एंड बैलेंस जो है स्टूडेंट्स वो बेसिक एम है enlarging the choice of people। अब लोगों के लिए दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के लिए चॉइसेस को इनलार्ज करना, चॉइसेस ज़्यादा करना। किस चीज़ से रिलेटेड? न्यूज़ से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड और म्यूजिक से रिलेटेड। इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों के लिए चॉइसेस जो हैं वो क्रिएट करें, ताकि वो जो है ज़्यादा उनका डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से रिलेटेड उनका एक्सपोजर हो सके। Then we have another important objective of improving access of people to the mass media at the local and the community level, and ensuring accountability by optimizing the free flow of information, regulate the establishment and operation of the licenses। फिर उसमें हम जो है स्टूडेंट नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि लोग जो हैं उन तक हम मैस मीडिया जो है उसको हम लोकल लेवल तक, यानी अर्बन एरियाज तक भी जो है, सॉरी रूरल एरियाज तक जो है उसकी भी हम रिसाई करवा सकते हैं और लोगों को सेंसिटाइज करवा सकते हैं ओवर द सोशल इश्यूज। और एक और जो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है अगर ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है वो फेयर हो, जिसको मीडिया ट्रायल का नाम देते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है, और कोर्ट ट्रायल से पहले जो है हम देखते हैं मीडिया ट्रायल स्टार्ट होता है। तो मीडिया ट्रायल कैसे स्टार्ट होता है? पॉलिटिशियंस का या कोई माफिया अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वहाँ पर जो है प्राइवेट चैनल्स के जो एनालिसिस जो है या तज्जिया निगार जो है वहाँ पर जाकर जो है जो भी स्कैम्स चल रहे होते हैं, जो भी माफिया होता है उसको एक्सपोज करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का भी जो प्रोसेस है वो इस ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू बहुत इजीली जो है वो किया जा सकता है, और लोगों को एजुकेट किया जा सकता है दैट who are in the favor of their country or who are not in the favor of their country, and on the basis of this accountability process we can shape their political opinions, and on the basis of those shaped political opinions
they can cast their vote to the better and deserving people. और नेक्स्ट जो लास्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव वो ये है कि किन किन लोगों को कौन कौन से चैनल्स जो है वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के फेवर में काम कर रहे हैं, कौन कौन से चैनल जो है तो पाकिस्तान के इस्लामिक वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कौन कौन से चैनल जो हैं वो सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, उन चैनल्स को की सिर्फ जो है वो पेमरा जो है वो लाइसेंस जो है वो इशू करता है। पेमरा जो है ऐसे किसी भी चैनल को लाइसेंस इशू नहीं करता who intend to work against the integrity of Pakistan, who intend to work against the social, cultural, political and Islamic values of the Pakistan. And if the PEMRA has issued the license and later on it revealed that some channel is working against the integrity of Pakistan or against the Islamic, cultural and political values of the Pakistan, then later on the PEMRA has authority to cancel their license as well. Then we have another topic of the functions of the authority. The authority shall be responsible for regulating the establishment and operation of all broadcast media and the distribution services in Pakistan established for the purpose of international, national, provincial, district, local or special target audiences. The authority shall regulate the distribution of foreign and local TV and radio channels in Pakistan. Moreover, the authority may, by notification in the official gazette, make regulations and also issue determinations for carrying out the purposes of their ordinance. As far as the functions of the authority is concerned, the authority जो है is responsible for regulating and the operation of all broadcast media and distribution services of Pakistan. अब जो पेमरा जो है बेसिकली उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है उसको तमाम लेवल्स पर रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है। रेगुलेट एंड कंट्रोल इस तरीके से करता है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोकल लेवल पर और समटाइम्स कुछ स्पेशल ऑडियंसेस को भी टारगेट कर कर जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मोरओवर द अथॉरिटी जो है अथॉरिटी रेगुलेट करती है फॉरेन और लोकल टीवी चैनल्स को भी। पाकिस्तान के कुछ चैनल जो हैं वो इंटरनेशनली जो है वो वर्क भी कर रहे होते हैं। पेमरा हैज़ गॉट द अथॉरिटी टू हैव अ चेक ऑन देयर एक्टिविटीज एज वेल। अगर पाकिस्तान मीडिया पेमरा को लगता है कि अगर वो फॉरेन चैनल जो हैं, पाकिस्तान के फॉरेन चैनल जो हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के फेवर में नहीं जा रही, पाकिस्तान का इंटरनेशनली इमेज जो है वो समहाउ डैमेज होने के चांसेस हैं, तो उनके भी जो है वो लाइसेंसेस को कैंसिल कर सकती है लेटर ऑन। मोर ओवर पेमरा जो है वो लोकल लेवल पर भी टीवी और रेडियो चैनल्स को रेगुलेट करती है एंड कंट्रोल। Lastly, the one of the most important function of this authority is that the PEMRA authority can later or even make certain amendments in their ordinance which highlight the purpose of this ordinance. यानी कि PEMRA जो authority जो है वो later on भी बाद में भी जब ये 2002 में आ गया ordinance ये चीज़ इसके फंक्शंस में जो है वो मेंशन कर दी है कि बाद में भी पेमरा अथॉरिटीज़ जो हैं वो अमेंडमेंट कर सकती है अपने इस ऑर्डिनेंस में, जिसके थ्रू अमेंडमेंट्स के थ्रू हाईलाइट कर सकती है कि क्या क्या पर्पसेस जो हैं वो पेमरा अथॉरिटी जो है वो सर अंजाम है। Then we have another subtopic of regulatory framework. PEMRA has been given the mandate to improve the standards of information, education and entertainment, to widen the choice available to the people for news, current affairs and other programs, to facilitate the devolution of responsibility and to ensure transparency by optimizing free flow of information.
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जहाँ तक हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, पैमरा जो है उसका एक बहुत ही सिंपल और क्लियर किस्म का मैंडेट है। और वो मैंडेट क्या है कि पैमरा ने रेगुलेट भी करना है और कंट्रोल भी करना है। दो फंक्शंस हैं, रेगुलेट करना और कंट्रोल क्या करना है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन की किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो चैनल्स जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या वो इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है या वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैंडर्डलेस है, क्या वो इंफॉर्मेशन मॉरलिटी के स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है और इथिकल स्टैंडर्ड्स को, कोड ऑफ एथिक्स भी जो है वो पैमरा में मेंशन किए गए हैं। एंड ऑल द चैनल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दोस कोड ऑफ कंडक्ट्स, कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट्स व्हिच आर इशूड बाय द पैमरा। और पैमरा जो है उस पर भी चेक करती है कि क्या जो इंफॉर्मेशन या एजुकेशन या एंटरटेनमेंट जो है वो चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जब मैसेज को, तो एक तो वो क्या स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे नहीं कर रहे, और अगर स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसको उस पर जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स के बीच में रहते हैं या नहीं, और क्या वो इस्लामिक एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ पाकिस्तान के पैरामीटर्स के अंदर फॉल करती है या नहीं करती। फिर लोगों को एक वैरायटी ऑफ न्यूज़ प्रोवाइड की जाए, और वो वैरायटी ऑफ न्यूज़ जो है वो फेयर हो, वो फॉल्स न्यूज़ पर मबनी ना हो, उसमें सेंसिटाइजेशन भी सिर्फ का एलिमेंट ही सिर्फ एग्जिस्ट ना करता हो। इनफैक्ट सेंसिटाइजेशन जो है उसको कम से कम जो है मिनिमाइज किया जाए, और ज़्यादातर ये देखा जाए कि लोगों को क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स जो है वो प्रोवाइड की जाए, और ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट हो वो एक मतलब एक मोनोपोली जो है वो क्रिएट ना हो कि कुछ चैनल जो है वो सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, और कुछ चैनल जो है वो किसी दूसरी पार्टी को जो है पॉलिटिकल पार्टी को है जो वो सपोर्ट कर रहे हो। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करें, देन हाउ इट इज इट पॉसिबल कि वो जो है वो ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड करें। सो वो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हो उसका एलिमेंट जो है वो लाजमी हो, और फेयर इंफॉर्मेशन जो है हकायक पर मबनी जो इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड to carry out its mandate effectively. PEMRA has formulated rules, regulations, code of ethics for licensing and functioning of satellite TV, cable TV distribution, FM radio and other electronic media technologies. The rules have been prepared in consultation with stakeholders and comparative study of international media regulatory practices. Moreover, the rules, regulations and codes have been formulated with the aim of safeguarding and national ideology or national heritage, socio-cultural norms, ensuring a level playing field to stakeholders, plurality and diversity, and discouraging monopolistic trends. जो है स्टूडेंट्स, पैमरा का जो सेकंड एक जो मैंडेट है वो ये है कि ऐसे इफेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, और ऐसे कोड एक इफेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना जो कि एफिशिएंटली जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को और क्वालिटी ऑफ कंटेंट को इंश्योर करे, और दूसरा जो है वो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो प्रोवाइड करे अपने तमाम लाइसेंस चैनल्स को, दैट दे आर बाउंड टू फॉलो दीज कोड ऑफ एथिक्स वेरी स्ट्रिक्टली, कि जो भी हैं सैटेलाइट टीवी है, केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एफएम रेडियो और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजीज जो है उनसे वो तमाम चीज़ें जो पैमरा की जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करता है। पैमरा जो है उसका सेकंड मैंडेट जो है कि वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करेगा कि वो उन तमाम जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को रेगुलेट करे कि वो क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करे, और बाय फॉलोइंग ऑल द कोड्स ऑफ एथिक्स व्हिच आर इशूड बाय द पैमरा अथॉरिटीज। मोर ओवर एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है पैमरा का है वो
ये है कि एज वी ऑल नो दैट वी हैव गॉट this homeland, a beloved homeland, on the basis of two nation theory. We have got this on the basis of a certain ideology of कायदा ज़मान बदले जना, और वो ideology जो है वो दो कौमी नज़रिया है कि ये दो कौमी नज़रिया यही था कि हम जो है मुसलमान सरवाइव नहीं कर सकते सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ये दोनों सब कॉन्टिनेंट में एक्चुअली दो कौमें एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि रिलीजन की बेस पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और रिलीजन जो है उसकी बेस पर वो दोनों कौमें एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रह सकती, और इसी आइडियोलॉजी की बिना पर उन्होंने अपने मुल्क को हासिल किया, मुसलमानों के लिए एक सेपरेट जो है मुल्क हासिल किया। सो पेमरा अथॉरिटीज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैंडेट उनका ये भी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें और कंट्रोल करें कि कोई भी जो है टीवी चैनल जो है ऐसा कोई भी कंटेंट ब्रॉडकास्ट ना करें जो कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हो। मतलब कोई भी टीवी चैनल जो है ऐसे प्रोग्राम्स शाया नहीं करेंगे जो कि तो कौमी नज़रिए के अगेंस्ट हो, और कोई भी प्रोग्राम जैसे ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे या टॉक शो जैसे कंडक्ट नहीं करेंगे, या फिर ऐसे न्यूज़ बुलेटिन जो हैं उनमें ऐसी न्यूज़ इशू नहीं होंगी जो कि पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट के खिलाफ कोई बात करेंगे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात करें, या आर्म फोर्सेस के खिलाफ कोई बात करें, या फिर पाकिस्तान के 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स जो हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनमें से किसी के अगेंस्ट कोई भी ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट जो हैं दे आर नॉट अलाउड टू मेक एज फार एज द पेमरा ऑर्डिनेंस इज कंसर्न्ड, इट्स मैंडेट इज कंसर्न्ड। तो पेमरा अथॉरिटीज जो है अपने मैंडेट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भी जो है वो इंश्योर करता है कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे के खिलाफ जो है वो इस तरह की कोई भी बात ना हो जो कि फॉल्स स्टेटमेंट्स ना हो इनके खिलाफ, और दूसरा पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है टू नेशन थ्योरी उसके खिलाफ कोई बात ना कोई करे कोई भी मीडिया चैनल। तीसरा, कोई भी मीडिया चैनल जो है वो हेट स्पीचेस जो है उसमें से ब्रॉडकास्ट ना हो, और कोई भी चैनल जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के इंटेग्रिटी के खिलाफ काम ना करे, और अगर कोई भी चैनल ऐसा कोई एक्ट करते हुए देखा जाएगा तो पेमरा के पास अथॉरिटी है कि उस चैनल का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ। Then there is a question that comes in our mind, that what is the need of the PEMRA? हमें पेमरा की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्या पेमरा के बगैर जो है वो पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल जो हैं क्या वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, क्या क्वालिटी कंटेंट को नहीं प्रोड्यूस कर सकते? तो द आंसर इज इन दीज 3 स्टेटमेंट्स to monitor TV channels, first, second, to reduce things against country, thirdly, to issue license companies. So first of all, the most important need of the PEMRA ordinance is to monitor all the TV channels. कि तमाम जो TV channels जो हैं उनको हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक जैसे कि क्लास में आप लोगों को अक्सर जो है स्टूडेंट्स क्लास में एग्जाम्पल देती है दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ द लॉ। क्या कानून की क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि मुल्क में हर मुल्क के अंदर कानून जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कानून इंसान जो है दैट इज रिबेलियस बाय नेचर। इंसान जो है दैट इज बॉर्न, ऑल द ह्यूमंस आर बॉर्न विद अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। So in order to control these different state of minds, in order to regulate human behavior, in order to make human behavior uniform, we need a certain set of rules and regulations which are superior to human beings, and they control the human behavior and make it uniform. So इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इस प्रोपोजिशन को इधर अप्लाई करें तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें मीडिया लॉज की जरूरत क्यों पेश आई, क्यों हमें पेमरा ऑर्डिनेंस जो था वो इशू करने की जरूरत पेश आई, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर चैनल्स हैं, उन सब कंट्रोल करने के लिए हमें जो है एक सुपीरियर लॉ की ज़रूरत है, और वो सुपीरियर लॉ जो होगा वो उन पे एक चेकिंग अथॉरिटी की तरह काम करेगा, और वो चेकिंग अथॉरिटी जो है उनको जो है वो अपने मैंडेट के अकॉर्डिंग काम करेगी और उनको रेगुलेट करेगी। सो फर्स्ट मैंडेट जो है कि वो तमाम मॉनिटर करेगा तमाम टीवी चैनल्स। सेकेंडली,
उन तमाम चीज़ों को मिनिमाइज करेगा, ख़त्म करेगा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही होंगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट इन एवरी स्टेट देयर आर सर्टन एंटी स्टेट एक्टर्स which actually act against the integrity of every state. So Pakistan is not an exception. There are even certain elements which are anti-state elements which actually act against the integrity of the Pakistan, and they use this media channels to broadcast their views and to control the people psychologically and to create the hatred among the people. And they have very different tools to play with the psyche of the citizen. लाइक बहुत सारे वेज हैं जिनसे जो है ऐसे एंटी स्टेट एक्टर्स जो हैं वो लोगों को साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हेट स्पीचेस कर सकते हैं, दूसरा जो है सेक्टेरियन वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को फिरकों में बांट कर ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है जब पेमरा जो है वो एक स्ट्रिक्ट जो है वो क्राइटेरिया जो है वो मैंडेट जो है वो इशू करेगी और उस मैंडेट के थ्रू इन पर चेक रखेगी। थर्डली टू इशू लाइसेंस कंपनीज, कि सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ वही कंपनीज काम करेंगी, वही टीवी चैनल जो है वो काम करेंगे जो कि पेमरा के थ्रू अप्रूव्ड हैं, जिनको पेमरा ने एक्चुअली में लाइसेंस इशू किया। अगर उनको लाइसेंस इशू नहीं किया होगा तो वो काम नहीं करेंगे। सो ये तरीका है जिसके थ्रू मीडिया जो है वो कंट्रोल हो सकता है, और एक्चुअली में हमें पेमरा ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पेश है, इन्हीं सब रीजंस की वजह से जरूरत है। Then we have another subtopic, that is terms and conditions of the license. To ensure that all programs and advertisements do not encourage violence, terrorism, racial, religious discrimination, sectarianism, extremism, militancy, hatred, pornography, other material offensive to commonly accepted standards of the decency. Secondly, to obey with rules made under this ordinance. अब टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो लाइसेंस इशू करने की वो यही है स्टूडेंट्स के इंश्योर किया जाए सबसे पहले तो कि तमाम जो प्रोग्राम्स हैं और जो एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं उनके कोई डबल मीनिंग्स ना हो। वो एडवर्टाइजमेंट्स जो भी मीनिंग जो है वो कन्वे कर रही हो, दैट शुड बी वेरी सर्टन एंड वेरी क्लियर एंड अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऑफ एथिक्स इशूड बाय द पेमरा अथॉरिटीज। और ऐसे कोई प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट ना किए जाएं जो कि वायलेंस को प्रमोट कर रहे हों, जो कि टेररिज्म की तरफ जो है लोगों को साइकोलॉजिकली जो है वो कंपेल कर रहे हों, रेशियल एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो, माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको भी उतनी ही प्रोटेक्शन जो है उनके मुल्क में दी गई है, तो ऐसा कोई भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो। फिर फिरका वारियत ना हो, सेक्टेरियनिज्म जो है उसको अवॉइड किया जाए, एक्सट्रीमिस्ट थॉट जो है वो जो है प्रोग्राम्स में ना दिखाई जाए, क्योंकि जब एक चीज़ को स्टूडेंट ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो वो चीज़ लोगों के बिहेवियर्स को अमेंड कर देती है एंड लोग जो हैं उस बिहेवियर को लर्न कर जाते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली वो उन बिहेवियर्स को अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। सो एक्सट्रीमिज्म जो है उस पर एक सीरियस चेक जो है वो रखा जाता है। देन मिलिटेंसी, हेटर जो है वो एक नफरत अमेज जो है वो प्रोग्राम जो है वो नाशाए किए गए, नाशे शाये किए जाए। पोर्नोग्राफी जो है उसको स्ट्रिक्टली जो है उस पर चेक्स एंड बैलेंस होंगे और इस तरह का कोई भी ऑफेंसिव मटेरियल जो है वो शाया नहीं किया जाएगा जो कि एक कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी से बिलो। और ये सब कुछ इंश्योर किया जाएगा कि इन तमाम रूल्स को जो पेमरा ने इशू किए हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है वो ओबे किया जाए। Next, to obey with the codes of the programs and advertisements approved by the authority and appoint an in-house monitoring committee under limitation to the authority to ensure compliance of the code. Not broadcast or distribute any program or advertisement in violation of the copyright or other property right. Thirdly, broadcast programs in the public interest specified by the federal government. नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो ये है कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि तमाम टीवी चैनल्स के अंदर अपना एक इंटरनल मॉनिटरिंग कमेटी का एक सिस्टम होगा कि एक तो पेमरा का चेक होगा, लेकिन पेमरा से पहले जब वो प्रोग्राम ऑन एयर किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो उस टीवी चैनल का एक अपनी मॉनिटरिंग कमेटी होगी जो उस प्रोग्राम को फिल्टर करेगी, देखेगी कि क्या ये प्रोग्राम
पैमरा के इशू किए गए कोड्स ऑफ एथिक्स के इनलाइन है या उसकी डेरोगेशन है। सेकेंडली, कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट या प्रोग्राम जो होगा वो ऐसा शाया नहीं किया जाएगा कि अगर किसी एक कंपनी के कॉपीराइट्स हैं तो वो दूसरी कंपनी जो है उसको शाया नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग जब इंशाल्लाह आगे कॉपीराइट्स लॉ पढ़ोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ोगे, जिसको IPRs भी कहा जाता है, उसमें ये चीज़ बहुत जो है क्लियरली बताई गई है कि जब आप एक किसी का कोई काम, कोई प्रोग्राम, कोई आर्ट या कोई भी चीज़ जो है राइट जो है वो कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड हो, तो कोई भी दूसरा पर्सन जो है या कंपनी जो है या टीवी चैनल जो है उसकी इजाज़त के बगैर उस चीज़ को शाया नहीं कर सकता। So all the TV channels have to strictly follow this rule made by PEMRA as well, that they are not allowed to broadcast any program or advertisement in violation of the copyright or any other property rights. तीसरी चीज़ जो है वो ये देखा जाएगा, तमाम टीवी चैनल जो हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जो भी प्रोग्राम जो हैं वो शाया कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के इनलाइन है या नहीं है, पब्लिक जो है इंटरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस चीज़ को स्ट्रिक्टली देखा जाएगा। Moreover, license is obtained through bidding. Then ensure maintenance of the freedom, security and integrity of the Islamic Republic of Pakistan. Ensure keeping care of the national, cultural, social and religious values and the principle of public policy as enshrined in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. और ये जो है तमाम टीवी चैनल जो हैं वो इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे कि इस चीज़ को इंश्योर करेंगे लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी जो है उनकी सालमियत और सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान में मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोग्राम जो हैं उनको ब्रॉडकास्ट करेंगे। कोई भी जो है प्रोग्राम ऐसा जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा विच इज़ अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। Thirdly, they have to keep in mind while broadcasting the whole content or programs that they are not allowed to publish anything which is against the social, cultural, political, economic and interest of the Islamic Republic of Pakistan. कोई भी जो है प्रोग्राम जो है प्राइवेट चैनल्स या पब्लिक सेक्टर चैनल्स कोई भी ऐसा प्रोग्राम शाया नहीं कर सकते जो कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा या पाकिस्तान के सकाफत के अगेंस्ट होगा या पाकिस्तान की समाजी और मजहबी वैल्यूज़ के अगेंस्ट होगा। इनफैक्ट अगर हम नेचुरल बात करें तो तमाम के तमाम टीवी चैनल्स को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो भी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करेंगे वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के इन लाइन होगा, पाकिस्तान के हक में होगा। देन व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ द लाइसेंसेस, कौन कौन से लाइसेंसेस हैं जो पेमरा जो है इशू करती है। फर्स्ट इज इंटरनेशनल एंड नेशनल स्केल स्टेशंस, तो नेशनल लेवल के हैं और बैनुल अक़वामी लेवल पर जो है लाइसेंस स्केल स्टेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ इंटरनेशनल चैनल्स हैं जो पाकिस्तान के जो हैं उन पर भी पेमरा की जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सटेंड होती है। देन द प्रोविंशियल स्केल ब्रॉडकास्ट चैनल जो कि एक सूबाई लेवल पर होते हैं, लोकल एरियाज एंड कम्युनिटी बेस्ड रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट, फिर एक लोकल लेवल पे जो होते हैं वो टीवी चैनल्स होते हैं उनको भी लाइसेंस इशू करती है पेमरा। स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स जो हैं कुछ स्पेशल कैटेगरीज आती हैं उनको लाइसेंस के साथ डील करती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज होती है, फिर सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट चैनल्स हैं उनमें भी पेमरा देखती है, चेक करती है कि
किन किन को लाइसेंस इशू करना है और किन किन को नहीं करना, लैंडिंग राइट्स कमीशन टू द टीवी चैनल्स, एफएम रेडियो लाइसेंसेस, फिर एफएम रेडियो चैनल्स जो हैं जो हम अक्सर सुनते हैं कुछ एरियाज़ के जो होते हैं उन एरिया टू एरिया भी वेरी करते हैं, उन पर भी जो है पैमरा उनकी भी लाइसेंस उनको इशू करती है। केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स, केबल ऑपरेटर्स होते हैं उनको भी पैमरा एक तो लाइसेंस इशू करती है, प्लस उन पर चेक भी रखती है कि वो किस तरीके का कंटेंट जो है वो जारी कर रहे हैं। मल्टीमीडिया मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देन द इंटरनेट टेलीविजन और इवन सोशल मीडिया जो हैं उन पर भी एक स्ट्रिक्ट जो है वो चेक रखा जाता है पैमरा। Then the certain persons not be granted license. What are those persons जिनको पैमरा जो है लाइसेंस इशू नहीं करती? A license should not be granted to a person who is not a citizen of Pakistan or resident in Pakistan. A foreign company organized under the laws of any foreign government. एक ऐसा पर्सन जो ना कि पाकिस्तान का सिटीजन है ना ही पाकिस्तान के रिहायशी है, उसको पैमरा जो है वो लाइसेंस इशू नहीं करती। दूसरा, कोई एक फॉरेन कंपनी जो है जो कि पाकिस्तानी लॉज जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, फॉरेन लॉज रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको भी पैमरा के अंडर लाइसेंस इशू नहीं होता। फिर a company the majority of whose shares are owned or controlled by foreign nationals or companies whose management or control is vested in foreign nationals or companies. Any person funded or sponsored by a foreign government or organization. फिर कौन से ऐसे जो हैं कंपनीज जो हैं वो तमाम कंपनीज जिनके ज़्यादातर स्टेक होल्डर जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं हैं, और वो कंपनीज जो ज़्यादातर जिनका मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो फॉरेन कंट्रोल है जिनके ऊपर, और फॉरेन फंडेड कंपनीज जो हैं उनको जो है मीडिया पैमरा जो है पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट एज अ पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल जो है उनको लाइसेंस इशू नहीं होता। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉरेन फंडेड है जो कि पाकिस्तान के देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करे हो, उसको भी पैमरा के अंदर लाइसेंस इशू नहीं होता। Economic contribution. Due to the government's investment-friendly policies, the country had witnessed a remarkable economic growth, particularly over the last 5 years. This overall and national growth has been helpful for the development of the electronic media industry in the private sector. According to estimates, there has been an increasing investment of approximately $1.5 billion in the electronic media industry. New jobs to more than 150,000 people of diversified skill and qualifications have been provided. In addition, over 7 million people have been accommodated through indirect employment. With the current growth rate of more than 7% annual, it is estimated that the increasing investment in the electronic media industry will reach nearly $2 billion by the end of the current financial year in June. This expansion in investment would in turn have a multiplier effect on increasing job opportunities for skilled media persons and journalists, expanding work of media production houses, advertising agencies, and growth of the performing arts. As far as economic contribution is concerned, जितने जो प्राइवेट चैनल जो है प्राइवेट सेक्टर जो है उसका आने से एक ही फ़ायदा हुआ है कि एक तो पाकिस्तान में लोगों को वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिली है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन हुई है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हुआ है, और एक चेक्स एंड बैलेंस जो है मीडिया पे विद द इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, मीडिया की आज़ादी के साथ साथ मीडिया पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के फॉर्म में पैमरा ऑर्डिनेंस आया और वो उसके तमाम कंटेंट्स को रेगुलेट करता है। सेकेंडली, इस प्राइवेट चैनल्स के आने के बाद फाइनेंशियली जो है इसने इवन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इसमें में की है कि जो जॉबलेस पीपल थे, क्वालिफाइड बट जॉबलेस पीपल जो थे, उनको जो है उसकी कंसिडरेबल जो है वो अमाउंट है कि जिन लोगों को अकोमोडेट जो लोग हुए इन प्राइवेट सेक्टर्स में जो कि क्वालिफाइड थे, स्किल्ड थे, बट ड्यू टू द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज their skills were getting waste. So this private sector media has accommodated those persons as well. और economically जो है पाकिस्तान में economic development जो economic contributions भी जो है वो भी private sector के थ्रू हुई है. So now I would like to conclude this lecture. Students, आज हमने डिटेल में पैमरा अथॉरिटीज़ को पढ़ा, पैमरा अथॉरिटीज़ का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें हमने
पेमरा अथॉरिटीज़ का जो है फंक्शन हमने स्टडी किए, पेमरा अथॉरिटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स का नेम स्टडी किए, फिर पेमरा अथॉरिटीज़ काम किस तरीके से करती है, फ्रेमवर्क जो था उसका हमने वो स्टडी किया। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़े कि किन किन लोगों को पेमरा अथॉरिटीज़ लाइसेंस इशू करती है एंड हु आर दोज पीपल हु आर इनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस थ्रू द पेमरा। फिर एंड पे हमने उसकी इकोनॉमिक जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो डिस्कस की। आई होप यू हैव गॉट the understanding about this lecture. I will upload this lecture on your Google Classroom as well. If you have any questions, feel free to ask. Stay blessed and take care of yourselves.